Hello everyone. Today we are going to discuss the fifth lesson, that is the temperature. In previous lessons we have discussed about the equator, the tropic of Cancer, the tropic of Capricorn, Arctic Circle, Antarctic Circle, and we have already seen that the sunlight, okay, falls straight towards the equator. Okay, and slanting towards the tropic of Cancer, Arctic Circle, North Pole, tropic of Capricorn, Antarctic Circle. Okay, understood. In the previous classes, we have studied that. I have explained to you. But as our chapter is related to temperature, so we should study it. Okay, so see, the sun rays are straight to this area, to the region, that is the equator. Okay. Now, obviously, if the sun rays are perpendicular to this area, okay, so this region, from the tropic of Cancer and equator, and from equator to the tropic of Capricorn, this region, okay, receives the greater amount of sunlight. Okay, greater amount of sunlight. So this region is very much hot, as you can see, and this region is called as the torrid zone. See, the region between the equator, tropic of Cancer, equator and tropic of Capricorn. That means the region between the tropic of Cancer and tropic of Capricorn. All this region is known as the torrid zone. Get it? Whole region is known by the torrid zone. Understood? Yes. Now let's see. Here the rays are slanting. Okay, not so much, but rays are slanting. Okay, so the region between the tropic of Cancer and Arctic Circle. Okay, this is called as the temperate zone. This is called as the temperate zone. Okay, now the region between the tropic of Capricorn and Antarctic Circle. Okay, it is also called as the temperate zone. Okay, but as it is towards the south side, it is called as the south temperate zone, and the region between the tropic of Cancer and the Arctic Circle. Okay, see here. So this is called as the north temperate zone, as it is towards the north side. Okay, now last one. Okay. See here towards the pole, okay, sun rays are very slanted. Okay, so these areas use a very less amount of sun rays. That's why it is very cold throughout the year. It is cold throughout the year. Okay, so this region, between the Antarctic Circle and the North Pole, this region is called as the frigid zone, and as it is towards the north side, it is called as the north frigid zone. Okay, and similarly, the region between the Antarctic Circle and the South Pole, okay, this region is also called as the frigid zone, but as it is towards the south side, it is called as the south frigid zone. So these are the temperate or thermal zone, temperate or thermal zones of the Earth. Okay. So sun rays coming towards the Earth travel in a straight line. देखो, actually sun से हमारे Earth पे जो rays आती है, वो कैसे है? Straightly आते हैं, straight आते हैं एकदम. However, the Earth is spherical in shape. आपको पता है. अब ऊपर से तो रे जा रही है, वो तो स्ट्रेट आ रही है सन से. देखो जैसे यहाँ पे स्ट्रेट जा रही है, बट हमारा प्लेस कोई, हमारी जो अर्थ है वो की ट्रायंगुलर शेप थोड़ी ना है. इट इज स्फेरिकल इन शेप. कैसी है ये? स्फेरिकल. यहाँ पे इक्वेटर पे ये कैसी है? फ्लैटन है, और यहाँ पे कैसा हो गया? ये कम कम होते जा रहा है. देखो अभी हम बात करेंगे पैरेलल्स की. देखो सन रेज, देखो अगर यहाँ से आते हैं, देखो इस एरिया में तो ज्यादा गिर रहा है, लेकिन यहाँ का जो एरिया लेस होने के कारण, ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, यहाँ पे जो है ये लाइंस के पैरेलल की कम कम होती जा रही है. देखिए आप,
छोटी छोटी होती जा रही है। तो ये रेज भी जो है वो एरिया जो है वो कम होता है उनको पहुंचने के लिए, ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, ड्यू टू द शेप ऑफ द अर्थ, एरिया का क्या हो रहा है, लेस हो रहा है। इसलिए यहाँ पे रेज जो है वो परपेंडिकुलर या फिर स्ट्रेट नहीं गिर पाती है, ठीक है। सो these are not perpendicular to all the parts of the earth surface, हर एक अर्थ सरफेस के पार्ट पर ये परपेंडिकुलर नहीं जा पाएगी, इसीलिए वो देखो इस रीजन में क्या है, स्लांटिंग है, टेम्परेट जोन और पोलर जोन और सॉरी फ्रिजिड जोन, ओके। In some parts they are perpendicular, where in other parts they are slanting. Just now I showed. To this region, equatorial region, they are perpendicular, straight, while towards the temperate region and the frigid zone, okay, these are slanting. The part where the rays occupy lesser areas receives bright sunshine and greater heat. Hence the surface there gets heated more and air become hotter. ठीक है, अभी देखो कि यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इक्वेटर पे, तो यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर रेज फॉल हो रही है, ठीक है। अब इसके वजह से ऑब्वियसली अगर परपेंडिकुलर सनरेज उस प्लेस पे हाई हो रही है तो वहां का टेम्परेचर क्या होगा, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होगा और हीट भी ज्यादा होगी। इसलिए जो इक्वेटोरियल पे रहने वाले जितने भी प्लेसेस है वो है हॉटर रीजन है। कैसे होते हैं, हॉटर रीजन, ठीक है। एंड the slant rays occupies the larger area. In this area sunlight appears less bright and less heat is there. Obviously अगर सनरेज अगर स्लांटिंग है तो उस एरिया में इतनी ज्यादा लाइट नहीं जाएगा तो इतना गर्म भी नहीं होगा। टेम्परेट जोन में जो है रेज जो है स्लांटिंग है, लेकिन इतने स्लांटिंग नहीं है जितनी जो है पोलर रीजन में स्लांटिंग होती है। सो दैट्स व्हाई द टेम्परेट रीजन इज नॉट सो हाई that of the torrid zone and not so cold, not so hot as that of the torrid zone and not so cold as that of the frigid zone. ये इन बिटवीन रहता है, ना तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा और ना तो कम होगा। और उसके ही अपोजिट टोरिड जोन में होगा कि टोरिड जोन में बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा और पोलर रीजन में जो है, फ्रिजिड जोन में जो है वो बहुत कम टेम्परेचर होगा जहां पे आइस पाया जाएगा, ठीक है। अंडरस्टूड। यानी ये देखो कि सनरेज तो हमें स्ट्रेट ही गिर रही है अर्थ के ऊपर, but just because of the shape of the earth, okay, we are getting perpendicular. In some places we are getting the perpendicular sun rays and in some places we are getting the slanting sun rays. और इसी वजह से this is the only reason for the formation of the thermal zones, okay, or temperature zones on the earth. Get it? Okay. On page number 24, see here, can you tell, okay, how will the rays fall between? I told you, अब भी बताया मैंने आपको, लेकिन यहाँ पे डिग्रीज दी हुई है, okay, it is given in degree. तो चलो पहले हम डायग्राम पे डिग्रीज बना देते हैं, उसके बाद we will discuss between 0 degrees and 23 degree and 30 minute नॉर्थ एंड साउथ के बीच में कौन से जोन्स फॉर्म होते हैं। सो फॉर दैट फर्स्ट वी विल राइट द डिग्री। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो होता है वो क्या होता है, टोरिड जोन 0 डिग्री, यहाँ पे इक्वेटर, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो ये सपोज दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 23 डिग्री एंड 30 मिनट, ओके, यहाँ पे है। अब ये नॉर्थ साइड में है इसलिए नॉर्थ, ठीक है। नाउ दिस इज द सी, दिस इज द आर्कटिक सर्कल। ये आर्कटिक सर्कल का जो है वो कितने डिग्रीज में, 60 डिग्री एंड 30 मिनट। नाउ as it is towards the north side we will write here now. It is very essential to write the direction and this is the pole, ठीक है। तो ये पोल का जो एंगल है that is the 90 डिग्री। तो जस्ट लाइक सेम इंटरवल सेम है, चाहे वो टेम्परेट जोन हो चाहे वो फ्रिजिड जोन हो, सिर्फ क्या चेंज होगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी। अगर नॉर्थ है तो नॉर्थ लिखो, साउथ है तो साउथ, ठीक है। अगर आपने जो है इसमें साउथ लिखेंगे,
23 डिग्री एंड 30 मिनट साउथ। और यहाँ पे सिमिलरली ये जो है ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये लाइन, दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड दिस इज द अंटार्कटिक सर्कल। ये लाइन कौन सी है देखो, मैंने यहाँ पे स्पेशली ड्रॉ की, ये है अंटार्कटिक सर्कल। किसका एंगल है, अगेन सेम 66 डिग्री एंड 30 मिनट साउथ एज इट इज टुवर्ड द साउथ साइड। और ये जो है अगेन ये है साउथ पोल, वो कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री। तो आपका क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, how will the rays fall between 0 degree to 23 degree and 30 minutes? हाँ, तो देखो 0 डिग्री to 23 डिग्री हम ये एंगल देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। मुझे बताओ ये रेज कैसे पास हो रही है, शो टेल मी। ओके, दिस रेज आर परपेंडिकुलर ऑब्वियसली। अगर आप ये लो, ये देखो 0 to 23 लो, 23 डिग्री एंड 30 मिनट नॉर्थ, और यहाँ पे भी देखो 0 डिग्री टू 23 डिग्री नॉर्थ। देखो आपको रेस कैसे गिर रहे हैं यहाँ पे, ये देखो कैसे गिर रहे हैं, यानी ये 0 डिग्री टू 23 डिग्री एंड 30 मिनट नॉर्थ, अगेन 23 डिग्री टू 23 डिग्री 30 मिनट साउथ। ये दोनों के बीच में देखो, ये दोनों रीजन देखो, यहाँ पे सनराइज कैसे है, स्ट्रेट, कैसे है, स्ट्रेट। ओके, सो as this effect, this area receives the bright sunshine and sunlight and greater heat obviously, and this region is known as the torrid region। अभी हुआ ये एंगल के बारे में। नेक्स्ट एंगल कौन सा दिया हुआ है, 23 डिग्री 30 मिनट एंड 66 डिग्री एंड 30 मिनट नॉर्थ एंड साउथ। चलो अभी हम बात करेंगे ये खत्म। अभी ये रीजन, दिस रीजन and this region, that is between the 23 degree and 30 minute north and 66 degree and 30 minute north। अभी इसके बीच में देखो, आपको क्लियरली दिखाई कि ये रीजन यहाँ पे रेज कैसे है, स्लैंटिंग, कैसे है, स्लैंटिंग रेज है। और फिर इसके तो सनशाइन क्या होगा, सनलाइट जो है वो कम गिरेगा और हीट भी क्या होंगी, कम होंगी। तो उस रीजन को क्या बोलते हैं हम, टेम्परेट जोन। अंडरस्टूड, यानी ये जो होगा इतना हॉट नहीं होगा ये रीजन जितना कि क्या है टोरिड जोन, क्योंकि यहाँ पे सनरेज कैसे गिर रहे हैं, स्लैंटिंग गिर रहे हैं। ठीक है, और लास्ट क्या पूछा है, लास्ट 66 डिग्री 30 मिनट टू 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, दोनों डायरेक्शन में। ये देखो अगर हमने यहाँ पे 23 डिग्री और 66 डिग्री और 30 मिनट नॉर्थ किया, तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे भी स्लैंटिंग है और यहाँ पे 66 डिग्री 30 मिनट साउथ लिखते हैं, तो इस यहाँ पे भी कैसे आ रहे हैं, स्लैंटिंग ही आ रही है। अभी हम बात करेंगे 66 डिग्री और ये हुआ आपका 90 डिग्री नॉर्थ और ये हुआ 90 डिग्री साउथ। ओके, अभी इस एंगल की बात करेंगे। इट इज वेरी वेरी स्लैंटिंग, सी इज वेरी वेरी स्लैंटिंग, बहुत ज्यादा स्लैंटिंग है। ठीक है, अब तो फिर किसे क्या बोलते हैं, एक्सट्रीमली। इसीलिए क्या होगा यहाँ पे, ये एरिया जो है एक्सट्रीमली लेस ब्राइट होगा, बहुत ही कम यहाँ पे सनरेज जाएगी और हीट भी बहुत ही कम रहेगी। तो यहाँ पे सीवियर कोल्ड कंडीशन रहती है, तो इसे बोलेंगे हम फ्रिजिड जोन। What it is called, frigid zone. So on the basis of getting the sun rays, whether it is a perpendicular, whether it is a slanting, there are 3 types of zone, okay, formed on the earth, and these are the torrid zone, temperate zone, and frigid zone. So these are the temperate or thermal zones of the earth. Okay. Next part of this topic we will discuss in next lecture. Till then, goodbye and have a nice day, all.